Everyone, welcome to Precision Prep. In the last video, we have covered the theory part of the share capital as well as the journal entries. In today's video, we are going to cover the journal entries related to the question related to all parts like fully subscription, under subscription, over subscription. So we are be covering with all these things in this video. Let's get started. Starting the journal entries with the under subscription of the shares, the first question is, a company invited applications for 50,000 equity shares at the rate of 10 each. 10 उसका क्या है? Face value है. Applications were received for 45,000 shares. Now, 50,000 हमारे invited applications हैं, that means issued shares हैं, and 45,000 are the application received. Issued shares 50,000. मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या कहता है कि एटलीस्ट 90% शेयर्स जो है हमारे पास आने चाहिए फॉर द सब्सक्रिप्शन. सो देयर इज 45,000 और 45,000 एप्लीकेशंस आर इन, दैट मींस वी कैन गो अहेड. अगर 45,000 से नीचे एप्लीकेशंस आते तो कंपनी को अपना सब्सक्रिप्शन क्या करना पड़ता? रिटर्न बैक लेना पड़ता. कंपनी कैन नॉट इशू द शेयर्स फर्दर. सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंट्रीज. द शेयर्स वर इशूड एट पार. पार दैट मीन्स 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पे इशू हुआ एंड ऑल मनी वॉज रिसीव्ड. अब इस क्वेश्चन में क्या है कि 10 रुपए का शेयर इशू हुआ एंड देयर इज नो एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल डिवाइडेड. ऑल द मनी इज पेएबल ऑन एप्लीकेशन एंड allotment. So in this case, how we are pursuing the entries? The first entry will be बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज क्या कर रहा है? पैसा रिसीव कर रहा है. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, बिकॉज क्या इशू किए? इक्विटी शेयर्स इशू किए. टू इक्विटी प्रेफरेंस नहीं आएगा. टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि सारा अमाउंट जो है एक ही स्टेज पेएबल है, इसीलिए हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. सारा पैसा एक ही स्टेज पे पेएबल होगा. एंट्री विल बी with the number of applications received, which is 45,000 into the value of the allotment or the full value payable, which is 4,50,000. And same amount copy करेंगे on the credit side, 4,40,000. Being the application money received. Now, coming towards the next entry, यहाँ पे भी changes होंगे. Equity share, preference हटाएंगे. Equity share application and allotment account debit to equity share capital account. equity share capital आया, preference नहीं आएगा. सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है हमारे पास क्वेश्चन में, तो नहीं लिखेंगे. बैंक अकाउंट ओवर सब्सक्रिप्शन भी नहीं है तो नहीं लिखेंगे. तो सेम अमाउंट. नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पे क्या है ना कि एप्लीकेशन ही कम है, तो शेयर कैपिटल में यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ एप्लीकेशन से ही एंट्री होगी, विच इज 4,50,000 into 10. So being the application money transferred to share application account. Whenever there is a under subscription given in the question, in this particular case, all the journal entry will be passed by the number of applications received. Right? I hope, am I clear to everyone? Okay, next move on to the next question. A company issued 5,000 equity shares at the rate of 10 each, which is payable as 3 on application, 4 on allotment, 3 on call. We'll check 4 plus 3, 7, 7 plus 3, 10. तो आपका full amount हो गया. Only one shareholder holding 100 shares failed to pay the call money. एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर्स हैं? आपके 100 शेयर्स हैं. Who is failed to pay this call money. वो कॉल मनी पे करने से मना कर दिया उसने. ठीक है. कॉल मनी दैट मीन्स 3 रुपीज का कॉल नहीं पे करेगा, बट देयर इज नो कंफ्यूजन इन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. और व्हाट ही एल्स सेज, देयर इज अ pass the journal entries and show how the calls in areas will appear in the balance sheet. बैलेंस शीट में आपको शो करना है कि calls in areas कैसे appear होंगे और क्या पास करनी है, हमें journal entries पास करनी है. Okay, we'll start with the first journal entry. What was the journal entry? Initial bank account debit to
इक्विटी शेयर्स बोला है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इस क्वेश्चन हम सिर्फ एप्लीकेशन लिखेंगे बिकॉज सारा अमाउंट आपका एप्लीकेशन पे पेबल नहीं है। सो एप्लीकेशन डिफरेंट स्टेज है, अलॉटमेंट अलग स्टेज है। विद द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव, क्वेश्चन में नहीं बोला है कितना एप्लीकेशन है, तो विल अज्यूम जितना इशू किया था उतना ही एप्लीकेशन आया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया हमारा फुली सब्सक्रिप्शन। 5,000 into number of the application received, 15,000 shares. 15,000 is the amount received on application. Being the application money received. Next entry में क्या होगा, हम ट्रांसफर करेंगे equity share application account debit to equity share capital account. There is no securities premium in the question and there is no oversubscription, तो return भी नहीं करेंगे. So no confusion. 15,000 number of issued share 5,000 multiply by the face value of the share. Okay. Allotment करते हैं. Equity share allotment account debit to equity share capital account. अभी यहाँ पे जनरल नरेशन क्या होगा, बीइंग द अलॉटमेंट ड्यू 5,000 shares multiply by the amount of allotment which is 4, there is no premium, so it will be 20,000. In the next journal entry we're going to receive the amount on the allotment. Bank account debit to equity share allotment account. द कॉल्स इन एरियस जो थे वो आपके कौन से स्टेज पे हैं, कॉल मनी की स्टेज पे हैं, दैट मीन्स फर्स्ट कॉल पे, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज इट इज जितना अमाउंट ड्यू किया है कंपनी उतना अमाउंट रिसीव कर रही है। ऑल द शेयर होल्डर्स आर पेइंग द अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। ओके, नेक्स्ट द फिफ्थ एंट्री, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट, सेकेंड कॉल नहीं है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बिकॉज क्या हुआ आपकी फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई, बीइंग द फर्स्ट कॉल ड्यू 5,000 into 3, there is no premium, so 15,000 and 15,000. now रिसीव करेंगे नेक्स्ट जर्नल एंट्री अमाउंट ऑन फाइनल कॉल। इसमें दो जर्नल एंट्रीज हो सकता है, हम दोनों करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन arrears account debit to equity share first and final call. Final call तो we know कितना ड्यू है हमारा 15,000. We already did in the previous journal entry जब अमाउंट हमारा ड्यू किया था। कॉल्स इन एरियर्स कितने लोग नहीं पे कर रहे, 100 शेयर होल्डर्स नहीं पे कर रहे, एंड पर शेयर होल्डर अमाउंट कितना है आपका 3 rupees ऑन कॉल। सो 300 इज द कॉल्स इन एरियर्स, सो 15,000 minus 300 अमाउंटेड टू रुपीज 14,700 जो आपने बैंक में रिसीव किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन है, इस एंट्री में अगर कॉल्स इन एरियर्स डेबिट नहीं करना है, सम स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं ठीक है कॉल्स इन एरियर्स डेबिट नहीं करते हैं, बिकॉज अगर कॉल्स इन एरियर्स हम यहाँ डेबिट करेंगे तो जब आप फीचर का एंट्री करोगे तो आपको कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट भी करना पड़ेगा, बिकॉज अकाउंट ओपन किया है तो क्लोज भी करना है। लेकिन ये दोनों तरीके से आपको एंट्री करना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स क्वेश्चन में लिखा होता है पास द जर्नल एंट्रीज बाय ओपनिंग द कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, तो कॉल्स इन एरियर्स ओपन किया तो इस तरीके से एंट्री होगा। अगर ओपन नहीं करना चाहते हैं तो हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एंट्री करेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 14,700 डायरेक्ट जितना आपने रिसीव किया, और कॉल्स इन एरियर्स लिखेंगे ही नहीं। दिस कुड बी द अदर पार्ट, आपका चॉइस है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं, बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है तो अकॉर्डिंगली हमें एंट्री करना पड़ेगा। नाउ व्हाट ही आस्क इन द क्वेश्चन, एक तो आपको जर्नल एंट्री पास करना था, सेकेंडली आपको कॉल्स इन एरियर्स दिखाना है कि आप बैलेंस शीट में कैसे अपीयर करोगे। दिस थिंग विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियोस, बिकॉज हमने अभी तक किया नहीं कि बैलेंस शीट में हम कैसे दिखाते हैं, सो वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। ओके, नेक्स्ट कम क्वेश्चन। ABC invited application for issuing 20 lakh equity shares at the rate of 10 each.
20 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए, पब्लिक ने सप्लाई किया 17 लाख शेयर्स के लिए। कैन द कंपनी प्रोसीड फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर? वी नीड टू चेक। 20 लाख शेयर्स उसने क्या किए हैं, कंपनी ने इशू किए हैं, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या कहता है, मल्टीप्लाई बाय 90%। कितना अलॉटमेंट होना चाहिए हमारे पास, 18 लाख के मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। लेकिन शेयर्स की एप्लीकेशन सिर्फ कितने के लिए इनवाइट हो रही है, 17 लाख लोग पब्लिक जो है सब्सक्राइब कर रही है। सुनो, as per the minimum subscription, the company cannot proceed for the allotment of shares. The next question, number 7. On 1st January 2024, the first call of 3 per share. Now, this is a small question जो आपको 3 mark में test करने के लिए आता है. There is no full-fledged journal entry. The first call of 3 per share become due on 1 lakh equity share. Become due का एंट्री हमने ऑलरेडी किया है. क्या होता है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. वगैरह ड्यू किया कितने शेयर्स पे, 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे, इज इशूड बाय हर्ष लिमिटेड. स्नेहा, अ होल्डर ऑफ 500 शेयर, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी. फर्स्ट कॉल मनी मतलब 3 रुपीज ने स्नेहा ने, जिसके पास 500 शेयर्स है, नहीं दिए. नेहा एक दूसरी शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर्स है, जिसने सेकंड एंड फाइनल कॉल भी नहीं, सॉरी, हु शेयर पेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल विद द फर्स्ट कॉल. नेहा ने अपना सेकंड और फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल के साथ ही पे कर दिया. दैट मीन्स यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स दोनों है. Pass the necessary journal entries for the amount received by opening, like he said, opening calls in arrears and calls in advance account in the books of the company. यही बात मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बोल रही थी. अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली उसने लिख दिया है कि आपको कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस ओपन करना, तो हमें ओपन करना पड़ेगा. सो तो जर्नल एंट्री हमें किसके लिए रिसीव करनी है आपकी, सबसे पहले फर्स्ट एंड फाइनल को, फर्स्ट कॉल को क्या करेंगे, ड्यू करेंगे. यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल नहीं लिखेंगे बिकॉज सेकंड कॉल भी है, तो सेकंड एंड फाइनल है. सो फर्स्ट कॉल ड्यू किया, तो ड्यू का एंट्री क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. सो जर्नल एंट्री विल बी कितने शेयर्स के साथ ड्यू कर रहा है वो, 1 लाख शेयर्स के साथ, मल्टीप्लाई बाय कितने का अमाउंट है फर्स्ट कॉल का, 3 रुपीज. सो 3 लाख रुपीज उसने ड्यू कर दिया विदाउट एनी सिक्योरिटीज प्रीमियम. नेक्स्ट एंट्री में अमाउंट रिसीव करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ लोग पैसा नहीं दे रहे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, जो लोग पैसा नहीं दे रहे उनके लिए कॉल्स इन एरियर्स, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, जिन्होंने ऑलरेडी एडवांस दे दिया. अगर कॉल्स इन एडवांस ओपन नहीं करना होता, व्हाट वी कैन डू इज हम डायरेक्ट शेयर सेकंड कॉल भी लिख सकते हैं. फर्स्ट कॉल का अमाउंट आप डायरेक्टली कॉपी करोगे बिकॉज ऑलरेडी ड्यू हमें पता है कितना है. कॉल्स इन एडवांस, एडवांस पे करने वाले कितने शेयर होल्डर है, 1000 शेयर्स. नेहा ने 5 रुपीज के अकॉर्डिंगली पे कर दिया. सो 1000 इंटू 5, 5000. 500 shares are not paying, so 500 into 3, 1500. So amount आना चाहिए था 3 लाख रुपीस, लेकिन 5000 ने एडवांस पे कर दिया, so 3 lakh 5000, but 1500 are not paying the amount, so 3 lakh 3500 अमाउंट जो है हमारे पास रिसीव हो गया by subtracting the calls in arrears of 1500 and calls in advance of 5000. Okay. Next, move on to the next slide, next topic. Over subscription of a share, the most important and hot favorite topic, जिसमें से क्वेश्चन आता ही है, एमसीक्यू से भी आता है और 6 मार्क में तो आना ही आना है. ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है, वी डिड इन द प्रीवियस सेशन ऑल्सो. In case issued subscribed shares by the public is less greater than the issued share by the company. For example, कंपनी ने इशू किए 1 लाख शेयर्स, बट लोगों ने सब्सक्राइब कर दिए 1,50,000 शेयर्स. दैट मीन्स पब्लिक ज्यादा सब्सक्राइब कर रही है. अब पब्लिक ज्यादा सब्सक्राइब कर रही है, बट कंपनी तो इतने शेयर्स अलॉट ही नहीं कर सकती बिकॉज कंपनी के पास तो शेयर्स ही नहीं है. सो इन दैट केस कंपनी कैसे डील करेगी विद द अपकमिंग डेज टू डील विद दीज शेयर होल्डर्स. तो कंपनी के पास जो है ये 3 वेज रहते हैं जिनके थ्रू कंपनी डील कर सकते हैं. यू मे गेट दिस क्वेश्चन इन 3 मार्क्स ऑल्सो और इन द वे आउट ऑफ द फॉलोइंग, which
is not the suggested way. Important for the theory, for the practical in any aspect of the view, 1 mark, 3 mark, 6 mark, हर टाइप में क्वेश्चन आएगा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का. लाइक फर्स्ट केस में कंपनी क्या कर सकती है वगैरह, कंपनी सिंपली कैन डू रिजेक्ट द एक्स्ट्रा एप्लीकेशन एंड रिफंड द अमाउंट. कंपनी क्या करेगी, एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देगी, जितने भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आए हैं, और उनका अमाउंट क्या करेगी, रिफंड कर देगी. ओके, सो लेट्स चेक. जैसे हमने अभी ये एग्जांपल किया कि 1,50,000 एप्लीकेशंस आए और 1 लाख शेयर्स जो है उसने अलॉट कर सकता है, कंपनी इशू कर सकती है. तो यहाँ पे आपके जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हैं वो कितने हैं, हमारे पास 50,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हैं. तो कंपनी क्या करेगी, विद द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, बिकॉज जितना भी पैसा उनके पास आया होगा वो एप्लीकेशन स्टेज के हिसाब से आया होगा. सो एज पर द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन कंपनी क्या करेगी, इन शेयर होल्डर्स का मनी रिफंड कर देगी और जो रिमेनिंग एप्लीकेशंस हैं 1 लाख शेयर्स हैं उन्हें अलॉट कर देगी. दिस इज द वन केस कंपनी कैन डील विद द over subscription of shares. What is the second one? Use pro rata or the proportional allotment. Pro rata क्या होता है, वो कह रहा है कि कंपनी कुछ नहीं करेगी, जैसे हमने अभी किया कि 50,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आए हैं, इन दैट केस कंपनी क्या करेगी, 1,50,000 शेयर्स को 1 लाख शेयर्स प्रो राटा बेसिस पे अलॉट कर देगी. दैट मीन्स जिन्होंने भी 1,50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको 1 लाख शेयर्स देगी. दैट मीन्स फॉर एवरी 3 शेयर्स, अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में करें, द रेशियो विल बी 3:2. फॉर एवरी शेयर होल्डर हु इज अप्लाइंग फॉर 3 शेयर विल बी अलॉटेड 2 शेयर्स. उनको 2 शेयर्स मिल जाएंगे, और जो इतना भी एक्स्ट्रा पैसा आया है उनका आने वाला एक्सेस अमाउंट उनके फर्दर कॉल्स पे एडजस्ट कर देगी. For example, 50,000 extra shares are into the amount of application. Let's say amount of application is 2. So 1 lakh rupees जो उनके पास extra आया होगा, what the company can do is, company कहेगी कि ठीक है अभी आपने allotment भी pay करना है, first and final भी pay करना है, हम आपका 1 लाख रुपीज आपको रिटर्न नहीं कर रहे, we are keeping this amount with us, और जो extra आपका बनता है वो आप हमें पे कर दो. This is the second way company can deal with the over subscription of shares. And what is the third way, जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है और हमें 6 मार्क में डील करना रहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट एंड 2 मेथड. दोनों को कंबाइन करेगी कंपनी की, कुछ पैसा रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ का अलॉट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1,50,000 एप्लीकेशन किया हमने और 1 लाख इक्विटी शेयर्स. कंपनी कहेगी जिन्होंने 20,000 शेयर्स अप्लाई किए हैं, लेट्स से उनका पैसा हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं. जिन्होंने 20,000 एप्लीकेशन अप्लाई किया, कंपनी कह रही है कि हम उनको शेयर्स अलॉट नहीं कर रहे एंड वी आर रिजेक्टिंग देयर एप्लीकेशन, यू कैन कीप योर अमाउंट विद अस. उनका पैसा क्या करेगी, रिफंड कर देगी. और जो रिमेनिंग एप्लीकेशन है, 1,50,000 एप्लीकेशन आए, सो 1,30,000 के एप्लीकेशन के लिए कंपनी क्या करेगी, उन्हें 1 लाख शेयर्स अलॉट कर देगी. ठीक है, कुछ को अलॉट कर दिया. अब यहाँ पे एक थोड़ा और एडिशन हो सकता है, लाइक इट कॉम्बिनेशन ऑफ 1 2, कुछ को रिफंड कर दिया, कुछ को प्रोराटा कर दिया, और कंपनी क्या कर सकती है, यहीं पे ऐड कर सकती है सम अलॉटेड इन फुल, कुछ को फुल भी अलॉट कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल यहीं पे करते हैं 1,50,000 वी आर डीलिंग विद द एग्जाम्पल. कंपनी ने कहा 20,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किए थे उनको हम बिल्कुल भी शेयर्स नहीं अलॉट करेंगे, एंड देयर ऑल मनी विल बी रिजेक्टेड एंड मनी विल बी रिटर्न टू देयर बैंक अकाउंट. जिन्होंने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको हम 15,000 देंगे. दैट मीन्स सम अलॉटेड इन फुल. 15 शेयर्स वालों को 15 शेयर्स दे, दैट मीन रेशो 3:3 और 1:1 में उन्हें अलॉट कर दिया. सो यहाँ पे फुल अलॉटमेंट होगी, देयर विल बी नो एक्सेस अमाउंट लेफ्ट विद द कंपनी, राइट? I hope I'm making clear to everyone. If there is any kind of doubt, please write in the comment section. Now, what are the remaining number of applicants? 1,50,000 minus 20,000 minus 15,000. The company will be left with 1,15,000 applications, और इनको प्रो राटा बेसिस पे अलॉट कर दिया, और जितना भी एक्सेस अमाउंट होगा इट विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स देयर अपकमिंग कॉल्स. These are the 3 ways through which company can adjust their money. So we are going with the question.
ABC invited application for 20 lakh equity shares at the rate of 10 each. कंपनी 10 each के shares issue कर रही है. Payable as application for allotment 5 balance on first and final call. तो अगर 4 application है 5 allotment है, so balance on first call कितना हो जाएगा आपका 1. There is no securities premium. Public applied for 25 lakh shares. So we have applications of 25 lakh shares and issued shares जो कंपनी अलॉट कर सकती है मैक्सिमम, वो कितने शेयर्स हैं आपके पास? 20 लाख शेयर्स. शो द मेथड हाउ द कंपनी कैन डील विद दिस सिचुएशन. सो सेम क्वेश्चन ऊपर से रेफर करेंगे. फर्स्ट वे क्या कर सकती है? नंबर 1, कंपनी कैन रिजेक्ट द एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस. क्या कर सकती है? रिजेक्ट extra 5 lakh applications and refund the money to the applicants. Number 1, this is how you have to write down the answers to get marks. Reject the extra applications and refund their amount. This is the one case the company can go for. Second part, there is a pro rata allotment. What the company can do is 25 लाख शेयर्स को आप 20 लाख शेयर्स दे दो और जितना भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन उनका बचेगा यू कैन यूज फॉर द फर्दर कॉल्स. एंड द थर्ड अमाउंट, सम एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड, लाइक 5 लाख में से कुछ एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दो. सम अलॉटेड इन फुल, कुछ को फुल अलॉट कर दो. एंड सम अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस. Kirloskar Limited issued 20,000 shares of 10 each payable as what? 4 on application, 3 on allotment, and 3 on first and the final call. So 4 plus 3 plus 7 plus 3, 10 हो गया. Face value 10 है. Issue price भी आपका 10. There is no securities premium involved. एप्लीकेशन रिसीव फॉर 25,000. इशू किए हैं आपके 20,000 शेयर्स और एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं हमारे पास 25,000. देयर इज अ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ 5,000 शेयर्स. कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट 20,000 शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस. तो कंपनी ने बोला है कि प्रो राटा बेसिस लेना है, रिजेक्ट नहीं करना. एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड फॉर द अलॉटमेंट मनी ड्यू. जितना भी एप्लीकेशन मनी एक्सेस आएगा उसे आप क्या का यूटिलाइज कर सकते हो? अलॉटमेंट मनी पे यूटिलाइज कर सकते हो. प्लस पास द जर्नल एंट्रीज इफ अमाउंट ड्यू वर ड्यूली रिसीव्ड. अमाउंट आपका ड्यूली रिसीव हो गया. सो फिर कमिंग फर्स्ट टू द वर्किंग नोट्स, फिर जर्नल एंट्रीज करेंगे. सो आपके वर्किंग नोट में क्या है? द वर्किंग नोट फर्स्ट सेज, द फर्स्ट वर्किंग नोट इज नंबर 1. पहला जो वर्किंग नोट बनाओगे उसके लिए आप हेडिंग डालोगे ओवर सब्सक्रिप्शन. पहला वर्किंग नोट हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन का होता है. सेकंड, फॉर कैलकुलेटिंग एनी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट. दिस इज हाउ यू हैव टू मेक, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे अगर आप वर्किंग नोट प्रॉपरली नहीं मेंटेन करोगे तो. ओके, सो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स 25,000 एप्लीकेशंस हैं. जो आपके एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आए आप लिखोगे एप्लीकेशन रिसीव 25,000. What we have further? Shares issued. कितने शेयर्स इशू किए 25,000 एप्लीकेशन को? 20,000 शेयर्स जो है इशू किए हैं एज पर द अलॉटमेंट. नाउ विल कैलकुलेट द एप्लीकेशन मनी रिसीव. एप्लीकेशन कितनी है हमारे पास? 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन. किससे मल्टीप्लाई करोगे? एप्लीकेशन रिसीव से. 25,000 इंटू 3, 75,000. फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई बाय द एप्लीकेशन अमाउंट. देन शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इंटू द फेस वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन. यहां पे जरूर ध्यान में रखना, आगे जाके जब क्वेश्चंस आएंगे आपके
इन दैट केस कई बार एप्लीकेशन पे क्या होता है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है, तो हम यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, शेयर अलॉटमेंट प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, लेकिन इस पार्ट में कुछ नहीं है ऐसा क्वेश्चन में. सो शेयर इशू 20,000 इन टू द अमाउंट ऑफ application, which is 20,000 into 4, which is 80,000. Not 4 on application, just 4 on application. So application money. Application आपका 4 रुपीज का है, तो यहाँ पे भी आपका application money जो है वो कितना हो जाएगा, 1 lakh. 25,000 into 4, it will be 1 lakh rupees. Allotment 80,000. So हमारे पास excess amount कितना हो गया? The excess amount is coming out to be 20,000. 1 lakh minus 80, 20,000. और इसे हम कहाँ यूज करेंगे? टूवर्ड्स शेयर अलॉटमेंट एडवांस में यूज करेंगे, द नंबर 1. और कोई कॉल्स इन एरियर्स नहीं है तो सेकंड कॉल्स इन एरियर्स का वर्किंग नोट तो बनेगा ही नहीं. सो द फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी amount received on allotment, bank account debit to share application account, number of applications received into the amount of application, which is 1 lakh rupees. और जब टेबल अगर आपने बनाया है तो आप चेक कर सकते हो, इसका टोटल जो है वो सेम होगा एज कॉलम 3 जो हमने टेबल में बनाया है. इफ यू आर मेकिंग द टेबल तो इसका कॉलम 3 के साथ सेम अमाउंट मैच हो जाता है. नेक्स्ट जर्नल एंट्री अमाउंट ट्रांसफर होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. वी आर नॉट रिजेक्टिंग एनी मनी, तो टू बैंक नहीं आएगा. सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा, बट वी आर यूजिंग एडवांस, सो टू शेयर अलॉटमेंट अमाउंट, बिकॉज हम पैसा यूज कर रहे हैं. एप्लीकेशन पे आया आपका 1 लाख, कैपिटल पे आपने ट्रांसफर कर दिया 80,000 और 20,000 आपने यूज कर लिया आपके अलॉटमेंट. ना अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to share capital account. Amount will be number of shares issued, क्योंकि अब तो एप्लीकेशन का काम खत्म हो गया, अब एप्लीकेशन रिसीव से एंट्री नहीं होगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी नहीं है. 20,000 into the amount of allotment which is 3, so it will be 60,000. अमाउंट रिसीव करेंगे अलॉटमेंट पे. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स नहीं लिखा बिकॉज सब लोग पे कर रहे हैं, तो 20,000 इंटू 3, 60,000 आना चाहिए, बट इन द सेकेंड एंट्री वी ऑलरेडी रिसीव 20,000 एक्स्ट्रा अमाउंट, तो अभी सिर्फ उसका जो रिमेनिंग बैलेंस है 60,000 माइनस 20,000, 40,000 ही हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे. आई होप these journal entries are clear to everyone. In the next video we will be covering with all the practical questions related to securities premium, over subscription of the shares, under subscription, and all the difficult parts of the question. Please stay tuned to for the upcoming videos. Thank you so much.